Yes, sir. Can we call triangle as a polygon? Yes, sir. Yes. Very good. चलिए बात करें चलिए आगे बढ़ते हैं this much you know चलिए next okay now what we will do some basics of this chapter तो चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं because maybe कुछ लोगों को दिक्कत हो तो we have to cover all the students here suppose मेरा quadrilateral है okay I have drawn a random quadrilateral here. Let me show the vertex clearly because there is no curvature here. Vertex होता है. Quadrilateral here, okay? बेटा प्रॉपर्टी क्या बताइए? अच्छा चलिए तो प्रॉपर्टी तो अभी नहीं आप बता पाओगे because स्पेशल नहीं है ये. But if we want to understand this, ठीक है? If you want to understand this, so can we call these things as vertices, okay? ABC beta vertices. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Everybody has covered this in class 8. Okay. Yes, sir. What we can write here? A, B, And D. C, and yeah. Vertices. Angle. Vertex. Vertices. Okay, vertices है ये. चलिए. AB, BC, CD and DA. Or line ये बेटा segments. क्या होता है ये? Line Sir, segment. side. Sides and edges, okay? Side बोलिए edges. Edges. Sides of the quadrilateral. ठीक है बेटा? ये basic things होती हैं. चलिए. Now, suppose अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें, इनको बेटा क्या बोलेंगे बताइए? एंगल एंड एंगल सीआर कैसे एंगल चाहिए? Sir, chord. Vertically opposite angle. एंगल. No, वर्टिकली नहीं बेटा, वर्टिकली नहीं. अपोजिट ओनली. वर्टिकली मतलब होता है ऐसे. opposite angles. इसमें ऐसा होता है बेटा. Sir, opposite वर्टिकली में angles. लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है? Opposite. अपोजिट एंगल है, ठीक है? Sir, they are opposite to each other. Yes, sir. Yes, opposite angle of a quadrilateral, okay? तो यहाँ पे आप AC भी लिख सकते हो, BD लिख सकते हो. ये दोनों क्या चीजें हैं बेटा? ये Opposite Opposite angles. angles. Opposite angles. opposite angles. Opposite angles of the quadrilateral. It should be clear about naming. इसको क्या बोलते हैं? Then you can go to the deep inside it. Okay, चलिए. बेटा AOD क्या है बताइए? यहाँ पे? Corresponding. Sir, on the same side Corresponding. of any line. Corresponding parallel. The alternate line angle. parallel नहीं है यहाँ पे. Sir, angle A and D are on the same side of a No. quadrilateral. Sir, consecutive Same side तो है, but इनका कोई name होता है? angles. देखिए B और C भी जैसे A और D है. ओके चलिए. Sir, consecutive angles. पेयर है. AD भी है. Consecutive बोल सकते हैं. Very good. Consecutive हो सकता है. But there is a proper name for this. तो बोलते हैं बेटा adjacent. ओके. Sir. बेटा हम ये पेयर लिख रहे हैं यहाँ पे, जो हमने ये दो के पेयर लिखे हैं, these pairs are called as, जो पेयर है बेटा AD का पेयर, A और D का पेयर हो गया, B और C का हो गया, C और B का हो गया, A और B का हो गया. उनका नहीं मतलब क्या? मतलब सिंपल है, जो एक लाइन भलाई करेगा, ठीक है? भलाई करने देखिए, जो ढलाई कर रहे हैं AD पे, AB लाई कर रहे हैं AB पे, B और C लाई कर रहे हैं BC पे, एंड C और लाई कर रहे हैं CD पे, ठीक है? Yes, sir. जब ऐसा होगा, there is a case when two angles lie on the same line segment. These angles are called as adjacent.
proper word that we just wait for a minute. Yes, sir. No problem here. Just wait for a minute. Just wait for a minute. Just hold on. Just wait. There's a network problem here. I think it is okay now. Okay, so we have understood that if in a quadrilateral, two angles are lying on the same side, then they are called as adjacent. ठीक है बेटा, उसको बोलते हैं adjacent angle, अगल बगल में. ठीक है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? नियर बाय. ओके, जस्ट अटैच्ड है. ठीक है, adjacent कहाँ से बेटा? अटैच. जैसे adjacent है वैसे अटैच होता है. ठीक है, सेम वर्ड्स आर देयर. चलिए, तो इसको बोलते हैं adjacent angles. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now we have some different kind of, that's the terminology हो गई. How to name them, how to identify them. Suppose the question comes, the sum of the adjacent angles of a quadrilateral is 180 degree. What can you say? You should be aware about adjacent angles. Okay? Excuse me, But sir. that's why there is a meaning also. Meaning is also important. ठीक बेटा बताइए. सर जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़ा कि एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जो एक साइड पे लाइज करते हैं, एक साइड पे. Your voice is not coming clear to me. The problem is there. I think. Your voice is not coming clear to me. सर मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे वेट करिए, सब नेटवर्क प्रॉब्लम इज क्लियर. हाँ हाँ. Just wait. There is some problem here. Okay. Is it okay now? Yes, sir. Let's Yes, sir. now. Okay, Seth, you are asking something. बेटा क्या पूछ रहे थे आप बताइए. सर जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल्स में ये पढ़ा कि जो वन साइड पे जो दो एंगल लाइज होते हैं उन्हें हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं. हाँ. तो सर ट्रायंगल में भी हम एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं. बोल सकते हैं बेटा, वेरी गुड. बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, ऐसा क्या है. सेम साइड पे होगा तो बोल देंगे उसको. ठीक है, यू कैन से दैट, बोल सकते हैं. बट देखिए उससे जरूरत नहीं पड़ती है. उससे जरूरत नहीं पड़ती है. बताइए, सबके बगल में बेटा दो दो होते हैं. ठीक है, एवरी एंगल हैज टू एडजेसेंट एंगल्स. तो उसमें कुछ खास मतलब बन नहीं पाता है. हर एंगल दूसरे का एडजेसेंट है. देखिए करके देखिए चाहे. व्हाट आई एम सेइंग यू. सपोज आई टॉक अबाउट दिस एंगल. तो देखिए बाकी दोनों का एडजेसेंट है. तो बहुत नई बात नहीं हो जाएगी. इसे नहीं
जनरली यूज नहीं करते हैं, बट कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं हो जाएगा। बट देखिए जैसे एक को आप बोलोगे तो बी भी इसके साथ में है और ए सी भी इसके साथ में है, ठीक है। बी को देखो तो ए भी साथ में, सी भी साथ में, ठीक है ना बेटा। देखिए कंपेयर करिए, सपोज आप इस एंगल की बात करते हो, ये देखिए इसके साथ ए भी कॉमन है और ए सी भी कॉमन है, तो दोनों इसका जो भी एंगल था इसका एडजेसेंट में ही है। इससे क्या होता है, इसमें इफ यू पिक वन एंगल देन अदर टू एंगल्स आर एडजेसेंट टू इट, दोनों बाकी जो बच्चे के उसके एडजेसेंट ही होते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ बोलने की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। देयर इज नो यूनिक थिंग देयर, तो यूनिक नहीं होता है, वो मतलब बहुत ऑब्वियस चीज है, वो बाकी दोनों भी एडजेसेंट है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आप क्या बोल सकते हो, इसमें आप बोलोगे ईच एंगल एडजेसेंट टू अदर टू एंगल्स, ओके। देखिए ये एंगल है, बाकी दोनों का एडजेसेंट देखिए, है ना, और ये भी देखिए दोनों का एडजेसेंट है, इसके साथ भी इसके साथ भी है, तो इसमें कुछ सबके लिए कॉमन होती है वो बात। That's why we can't distinguish them separately, okay? Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलिए। Sir, every closed polygon is a quadrilateral. No, it is a wrong statement here. Sir, it should be have 4 sides. Yeah, and it should be 4. Your side should be 4. Your number Sir, of so sides we should will be not 4. consider circle as a quadrilateral now. No, you can't say. Okay, sir. But if you keep on reducing, but देखिए होता क्या है, you might have learned this in class 9 में आप लोगों, तो आपने मोशन पढ़ा मोशन चैप्टर फिजिक्स में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, मोशन sir. मोशन में आपको एक चीज बताई गई होगी कि आपको ये बताया गया होगा, सपोज देयर इज ए क्वाड्रिलेटरल, ओके, फिर आपने उससे पेंटागन बना दिया, फिर आपने उससे हेक्सागन बना दिया, फिर आपने उससे हेप्टागन बना दिया, ठीक है। तो अगर आप इसको इंक्रीज करते जाओगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली जो आपका सर्कल आएगा वो Circle बन जाएगा। साइड बन जाएगी। Have you learned about this diagram there? ऐसे कुछ बन Yes, जाएगा, sir. बहुत स्मॉल लेंथ की साइड आ जाएंगी। जितना साइड इंक्रीज करते जाओगे उतना चांसेस होंगे कि वो एक साइड की Circle लेंथ बन नेग्लिजिबल हो जाएगा, जाएगी। ठीक है। Yes. When the side length become negligible there, then it can take the shape of a circle, okay? हो सकता है कि कुछ और ही बन जाए, depending upon the side की लेंथ कितनी है। But if the each side is getting reduced by the same amount, अगर एक स्क्वायर था, ठीक है, स्क्वायर से आपने एक रेगुलर पेंटागन बना दिया, तो अब बेटा साइड शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ, ओके। यहाँ पे सारी साइड सेम लेंथ होनी चाहिए, देखिए। अगर आप ऐसे करते जाओगे आपको इनफाइनाइट लेंथ, अगर आप बहुत सारे अगर आपका जो एन होगा यहाँ पे, जो सपोज यहाँ पे एन देखिए 4 है, ये 4 साइड्स हैं, यहाँ 5 साइड्स है, 6 साइड्स है, 7 आएगा। ऐसे अगर आपका एन वेरी लार्ज हो गया, अगर आप इनको बहुत बड़ा नंबर ले लोगे, जब उसको ड्रॉ करोगे तो अल्टीमेटली यू विल एंड अप हियर, ये आपको सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज द कांसेप्ट हियर। Sir, means every circle is formed from a square. We can say that. We can Okay, say. sir. The basic figure is square. When you increase the number of sides, when n becomes very large, then it becomes a circle, okay? Circle. चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो यू ऑल ऑफ यू नो दिस बेसिक, सबने बड़ा क्लास ऐसे पढ़ा हुआ है, बट सिंस चैप्टर इज देयर इन क्लास 9 आल्सो, वी हैव टू डिस्कस दिस आल्सो। बताइए बेटा फर्स्ट फिगर कौन सा होता है क्वाड्रिलेटरल में? बेसिक फिगर Square. Sir, trapezium. पैरेललोग्राम लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपको कुछ लॉजिक है इसमें, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक Parallelogram. Parallel. पहले पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है बताइए? Sir, it means Its opposite opposite sides are side parallel to each parallel. other. Parallel and When equal we to say each the other. basic definition, we only say opposite sides are parallel. Okay. When we say the basic definition, we say that opposite sides are Parallel. Equal. parallel. बाद में वो प्रूव करेंगे हम
बेसिक डेफिनेशन होती है पैरेललोग्राम की, दैट इज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ओके, ठीक है बेटा, ये बेटा डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की, बेसिक डेफिनेशन. ठीक है बेटा, तो ये पैरेललोग्राम होता है. चलिए अब आते हैं हम किससे, नेक्स्ट वी हैव रोम्बस. देखिए रोम्बस क्या होता है, बताइए रोम्बस क्या होता है. Screened ball. ओके, All sides are equal. Sir, all four sides are equal and diagonals bisect each other. what is the basic definition here? Sir, all sides Sir, are all four equal. sides are equal. Yes, sir. And sir, AD, yes, sir. AD and BC are parallel also. The basic definition is, the basic definition क्या होती है? The basic definition of rhombus is a parallelogram. The basic definition is a parallelogram. rhombus से parallelogram ही होता है, but कैसा होता है उसमें? With Having all sides equal. equals. In which different sides are Equal. okay. बेटा ये होता है, देखिए समझ में आया बेटा? Yes, sir. डेफिनेशन है, ठीक है. देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, आपको समझाते हैं. देखिए दोनों डिफरेंस क्या है. तो डिफरेंस इज, सपोज यार हमें पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हमारे पास था, Yes, sir. PQRS से पैरेललोग्राम हमारे पास. पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? अपोजिट साइड्स Sir, आर opposite sides are parallel to one another. अनइक्वल भी होती है, ठीक है. चलिए अब हमने क्या बोला आपसे कि जो आपका रोम्बस होगा, रोम्बस में दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है. व्हाट वी नो, पैरेललोग्राम में नोन क्या होता है? इन पैरेललोग्राम वी कैन से दैट PQ is parallel to SR SR. and PS SP is parallel to QP, QR. ठीक है, ठीक है बेटा. एंड व्हाट एल्स वी नो, और क्या पता होता है बताइए हमें? We also know Sir, that all angles, all sides are equal. is equal to RS Sum of adjacent angles is is equal to 180. QR, ठीक है. This much you also know. अब देखिए बेटा, इससे रोम्बस कब बनेगा? इसको लेकर रोम्बस बना रहे हो, ठीक है. उधर रोम्बस से पैरेललोग्राम ही होता है. ये आप समझिए डिफरेंस. रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है. कैसा पैरेललोग्राम है? लेकिन देखिए रोम्बस एक Sir, in पैरेललोग्राम which all four sides are equal. Yes. Each side is equal to other side. Okay. रोम्बस से पैरेललोग्राम, बेटा रोम्बस से पैरेललोग्राम ही होता है. इसमें क्या Yes, होता है sir. बेटा? साइड पैरेलल तो है, देखिए अपोजिट साइड, तो अभी भी ट्रू रहेगा, बिल्कुल पैरेललोग्राम है ये. बट द डेफिनेशन से एडिशनल साइड्स आर इक्वल, मतलब PQ इक्वल टू PS है, ठीक है. तो व्हाट एडिशन इज गिवन टू अस? PQ इज इक्वल टू PS है, ओके. PQ इज इक्वल टू QR भी है, ठीक है बेटा. Yes, sir. We can take this as our reference side, okay. So we can say that it is given to us. ये पैरेललोग्राम है, कैसा पैरेललोग्राम है जिसमें adjacent sides are equal, so PQ must be equal to PS, PQ must be equal to QR also, ठीक है. But अब पैरेललोग्राम में Sir, बेसिकली क्या होता है? PQ will not be पैरेललोग्राम equal to है, SR. बेटा वो तो है ही, वो तो पैरेललोग्राम किया जाता है. बट हम अभी देखें दो चीजें यहाँ पे. We have two things here. एक पैरेललोग्राम भी है, adjacent side equal भी है. कंबाइनिंग these two values, हम दोनों कंबाइन कर रहे हैं यहाँ पे. हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज और ये मिक्स करा दे रहे हैं, ठीक है. हम पैरेललोग्राम की Okay, sir. प्रॉपर्टीज इसको मिक्स करा के रिजल्ट क्या आता है वो हम देख रहे हैं, ठीक है. देखिए ये इसको मिक्स करा के इसको इससे मिक्स करा रहे हैं, देखिए. तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लिख लीजिए अब. ये तो बेटा प्रॉपर्टी आपको यहाँ से मिली है, देखिए. These property are from this definition. देखिए पैरेललोग्राम से क्या आता है? पैरेललोग्राम से ये आता है आपको, देखिए पैरेललोग्राम से ये आता है, देखिए PQ is equal to RS, ठीक है. You know this or not? बताइए. Yes, Yes, sir. sir. Yes, You sir. know that PQ is equal to RS. Just combine them. सबको combine करिए, देखिए क्या आता है. Just combine these three equations here. Combine All करिए four बेटा. sides are equal to one another. Yes.
then you will get Sir? that PQ is equal to PS, QR and RS. Okay, this gives us Sir? what? Yes बेटा बताइए. Sir, in this, sir, in rhombus we can also say that, sir, SP is parallel to RQ and sir, SR is parallel to PQ. Yes, very good. बेटा पैलोग्राम तो है ही है. तो No, पैलोग्राम sir, तो in है ही rhombus. है. पहले ये तो रोमस से भी होता है. वेरी गुड बेटा. रोमस से तो रहेगा ही रहेगा. पैलोग्राम तो है ही है. PQ SR की पैरेलल है और PS QR के पैरेलल. ठीक है बेटा. Yes, sir. ठीक है बेटा. ये तो प्रॉपर्टी है बिकॉज पैलोग्राम है ये. उसके साथ कुछ और आगे ऐड हो गया है. देखिए ये फिगर था आपके पास, पैलोग्राम तो था, ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही थी, ये अभी भी फॉलो हो रही है. कुछ आके अटैच हुआ, ये प्रॉपर्टी अटैच हो गई इसमें आके, वो प्रॉपर्टी अटैच हो गई, ये बन गया. देखिए ठीक है. तो दीस टू थिंग्स आर हियर इन रोम्बस. ठीक है. रोम्बस में देखिए दोनों चीजें होती है. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल आल्सो एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल आल्सो. ठीक है. दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ पैलोग्राम. समझ गए बेटा. फॉर रोम्बस, रोम्बस व्हाट इज द रोम्बस? सर हम इनके डायगोनल्स के बारे में भी पढ़ेंगे आगे. हाँ भाई डिटेल में बहुत जाना है, बहुत डिटेल में जाना है इसके बारे में. ओके सर. यू विल सी ईच एंड एवरी डिटेल. वो आगे आएगा, अभी तो आपको बता रहे कि होता क्या है. ठीक है. ओके सर नेमिंग है बेटा अभी. यस बताइए. सर स्क्वायर में भी यही फॉर्मूला होगा. क्या बेटा? सर स्क्वायर में भी यही पुट होगा. स्क्वायर बेटा, बट देखिए एक प्रॉपर्टी और जो यहाँ डिफर होती है. देखिए तो जब हम वो बताएंगे तो आपको बताएंगे. देखिए अभी आपको बता दे. चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता ओके है सर. बेटा. यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं. So diagonals and angles Yes. are not equal. In the rhombus, diagonals are also not equal. That is the very difference here. देखिए. So what other things we know? What else we know? We know that in a rhombus, डायगोनल बाइसेक्ट PR is not equal to QS. Sorry, PR and QS. Yes. चलिए. Please. ठीक है. इक्वल नहीं होते बेटा rhombus में डायगोनल. ठीक है. यस सर. इक्वल Okay, होते हैं. sir. Somebody might say ये तो स्क्वायर भी होता है. फिर आप कह रहे हैं बता रहा हूँ. We have learned this कि स्क्वायर में साइड इक्वल होती हैं. बट स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं. यहाँ पे इक्वल होते हैं या इक्वल नहीं होते. ठीक है. सर इक्वल होते हैं. रोम्बस इन द यस स्क्वायर में इक्वल होते हैं, रोम्बस में इक्वल नहीं होते. ठीक है. इन द स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल बट रोम्बस डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. ये बेटा फॉलो होता है. दीस टू प्रॉपर्टीज आर कॉमन टू स्क्वायर आल्सो. ठीक है. ये प्रॉपर्टी sir. और प्रॉपर्टी स्क्वायर भी होती है. डिफरेंस कहाँ पे है? ये डिफरेंस है देखिए स्क्वायर और रोम्बस में. ठीक है. Square है फिर Diagonal का. 90 डिग्री. इन द स्क्वायर या 90 भी होता है. वेरी गुड. वो भी डिफरेंस है देखिए. ठीक है. समझना बेटा. स्क्वायर में बेसिक डिफरेंस क्या डिफरेंस कहाँ से शुरू होता है? वो तो और डिफरेंस और भी है. ठीक है. स्क्वायर डिफरेंस शुरू कहाँ से होता है? डिफरेंस स्टार्ट फ्रॉम डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. ठीक है. Diagonals. डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल. ठीक है. डिफरेंस है देखिए. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा बोलिए. सर इन स्क्वायर द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. यस बाइसेक्ट तो करते हैं बेटा. बाइसेक्ट यहाँ भी करते हैं. देखिए बाइसेक्ट यहाँ भी करते हैं बेटा. पैलोग्राम में भी Okay, करते हैं. ठीक है. यहाँ भी देखिए बाइसेक्ट करते हैं. सपोज इफ यू टेक दिस पॉइंट एज m here, this is equal to this here, so we can also write that mq is equal to ms and mr is equal to mp. ठीक है. This we can also write here. Excuse me, sir. Write that mp is equal to ms, mr sorry, mp is equal to mr and mq is equal to ms. ठीक है. ये देखिए बेटा. ठीक है बेटा. देखिए ठीक है बेटा बताइए. यस सर. This property Yes, also holds true. So one property is very common here. That property is diagonal. The property common to both parallelogram and rhombus is diagonal bisect each other. ठीक है. ये property दोनों में common है. Whether you can take the parallelogram, you can take the rhombus in both the figures. So diagonal bisect each other. ठीक है. तो ना बेटा ये बहुत डिटेल में आगे करेंगे. ओके. ये बहुत डिटेल में आगे करेंगे. देखिए. चलिए. सर वी विल प्रूव देम आल्सो. we'll prove them also. प्रूव भी करेंगे. Because अभी हम आपको सिर्फ न्यूइंग बता रहे हैं. Right now I am giving the basic idea. बेसिक में क्या होता है? So that we can start the chapter with understanding. अभी हम इसको पूरा थ्योरम बिठाएंगे. थ्योरम्स will be there.
जरूरत पूरी आएंगी then I will go into detail of that. But Okay, for sir. for going Excuse to the me, sir. program, we should know the basic also. हाँ बेटा बोलिए. सर मैं नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाया था। सर आप बता देंगे कि आप क्या पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा चुका है? आज बेटा कुछ नहीं पढ़ा अभी तक आपने. नो सर। तो बेटा अभी आपको हम लेक्चर अपलोड कर देंगे, आज आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है? बिकॉज ऐसा आपको हम बताएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा. बहुत फिगर वगैरह सब हटा देंगे फिगर. हमने फिगर सारा हटा दिया, उसमें सारा पॉइंट फिगर में ही थे. सर आप एक बार शॉर्ट में बेटा पैलोग्राम और सर आप रोम्बस एक बार शॉर्ट में बता दीजिए। बेटा पैलोग्राम और Okay, रोम्बस sir. क्या होता है डेफिनेशन बताइए, और कुछ नहीं बताया. पैलोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, बस इतना बताया. ठीक है? ओके चलिए. सर। और ज्यादा कुछ नहीं बताया बेटा. चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है. नेक्स्ट वी हैव रेक्टेंगल. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रेक्टेंगल हियर. देखिए रेक्टेंगल क्या होता है. बट रेक्टेंगल पैलोग्राम से ही बनता है. ठीक है, व्हाट इज रेक्टेंगल? Yes, sir. रेक्टेंगल इज पैलोग्राम. The opposite side, sir. Rectangle is a parallelogram in which one of the angles becomes 90 degree. 90 डिग्री. ओके, ये बड़ा बेसिक डेफिनेशन है. और बहुत कुछ है. डायगोनल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो वो आगे की चीज है. बेसिक फिगर, बेसिक डायग्राम, बेसिक डेफिनेशन. देखिए क्या मतलब है इस तरह के. आपको ये समझ में आएगा, बेसिक से बताते हैं आपको. व्हाट इज द बेसिक डायग्राम है. सपोज बेटा ये पैलोग्राम है. ठीक है, Yes, sir. आई एम सेइंग दैट ये बेटा पैलोग्राम है. ये पैलोग्राम आपको गिवन है ये. ओके, तो पैलोग्राम आपने बना लिया यहाँ पे. ठीक है, पैलोग्राम इज गिवन टू यू. व्हाट आई विल डू हियर, आई हैव रिटन वन मोर थिंग हियर. वन ऑफ द एंगल इज, वन ऑफ द एंगल बिकम 90 डिग्री. ओके, लेट अस से ये 90 हो गया बेटा. ठीक है, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा. अभी 90 नहीं था, पैलोग्राम में 90 नहीं था, हमने उससे सर ऐड ऑल ऑन कर एंगल्स दिया. 90 के हो जाएंगे. Yes. All four angles will be 90 degree. I have made one angle 90 डिग्री. ओके, देखो उससे क्या फर्क पड़ेगा. देखिए ये दोनों 90, ये दोनों लाइन पैरेलल है बेटा. देखिए Yes, sir. दिस ना सर पैरेलल है यार. ओके, दिस शुड बी हाउ मच. Sir, 90 degree. 90 degree. और these are co-interior angles. ओके, you can see that these are Co-interior. co-interior angles. ठीक है, देखिए 90 Yes, sir. डिग्री हो गया. Now you can come here. देखिए आ जाइए आप. तो देखिए ये एंगल बेटा कैसे है, देखिए Sir, co-interior pair. Sir, 90 degree each. Okay, because AD and BC are parallel here. Okay, co-interior हो गए. This is also 90. 90. ठीक है, यहाँ आ जाइए. Again, Sir, co-interior BC are pair. parallel here. 90 Again, degree. co-interior. देखिए आपका फिगर कैसा हो गया ये. Your Rectangle. figure has become like this. आपका फिगर कुछ स्ट्रेट हो गया है. साइड था ना वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होंगे. ठीक है, इंक्लाइंड नहीं है. देखिए पहले इंक्लाइंड था ना, अब वर्टिकल हो गया बिकॉज़ 90 एंगल हो गया. नो फिगर इज वर्टिकल है. ओके, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन था. So here we have 90 and 90 angles. ठीक है बेटा, तो नाउ वी समराइज कर लेते हैं. अब देखिए बेटा है तो ये पैलोग्राम ही. ओके, चलिए पूरा सा समराइज कर रहे हैं. देखिए तो जब आप समराइज करोगे थे, व्हाट शुड यू शुड राइट हियर. यू कैन राइट दैट AB parallel BC. ओके, एंड AD AD is parallel to BC. पैरेलल टू AD. ओके, देखिए बेटा. ठीक है, बट अब ये बताइए बेटा, जैसे ऑब्जर्व करिएगा यहाँ पे, ऑब्जर्व दिस. ये दो लाइन बेटा परपेंडिकुलर है. ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी होगी बताइए. सेम नहीं होगी बिकॉज़ लाइन हॉरिजॉन्टल है. ऑब्जर्व करके देख लीजिए, बस ऑब्जर्वेशन करना है अभी आपको. तुम बात नहीं करेंगे. ठीक है, देखिए दो लाइन परपेंडिकुलर है ये. ठीक है, दोनों वहीं पे तो कट करेंगे इसको जहाँ पे ये कट कर रही है. ये लाइन सेम नहीं होगी. देखिए ABDC. ऑब्जर्व करिए बेटा. Yes, sir. ऑब्जर्व करिए, बहुत सिंपल है ये तो. Yes, sir. सपोज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर. ओके, जहां पे ये कट करे उसके ऊपर ये पॉइंट
ये कट करे उसके ऊपर ये पॉइंट हो गया, सेगमेंट शुड बी इक्वल है, इक्वल में सेगमेंट को दो. व्हाट वी कैन डायरेक्टली राइट अबाउट ऑब्जर्वेशन, on the observation we can write that AB is equal to BC, okay. और what other thing is, यहाँ देखिए यहाँ भी वही है, ये 90 है बेटा, देखिए ये 90 तो क्या Yes, होता है, sir. उससे BC equal to AD, okay. They're equal. BC is equal to AD, okay बेटा. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है. अब देखिए और सारे 90 एंगल है, देखिए वो भी क्लियर है यहाँ पे. यू कैन आल्सो राइट दिस, एंगल A is equal to एंगल B, C is D is 90, okay. चलिए और देखते हैं बेटा. अब देखिए डायगोनल क्या, व्हाट कैन से डायगोनल से बताइए, डायगोनल सबसे प्रॉपर्टी होगी बेटा. व्हाट अबाउट डायगोनल प्रॉपर्टी Diagonals are बताइए. equal. Yes sir, diagonals are Diagonals equal. equal. हाँ कैसे बेटा, कैसे कह सकते हो आप ये? क्योंकि सर सारे एंगल इक्वल है. Sir, because all angles are equal. ओके चलिए, ऑल एंगल्स आर इक्वल तो डायगोनल इक्वल हो गए. बेटा देखिए यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ पाइथागोरस. तो किसी का पाइथागोरस हमसे कर लेते हैं. Yes, sir. यू नो पाइथागोरस बताइए. Yes, sir. Yes sir. तो पाइथागोरस थोड़ा पता है, ओके. देखिएगा अब करते हैं पाइथागोरस से. तो सपोज बेटा ये ए लेंथ है, ओके. Yes sir, हाइपोटेन्यूज कॉमन हो जाएगी. बेटा ए लेंथ है, ये बी लेंथ है, ये भी बी लेंथ हो गया. अभी प्रूफ कर देगी थोड़ी देर पहले अभी. ओके वी हैव रिटन दिस, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल, ठीक है. तो बेटा ABDC ए है और ADBC बी है, ठीक है. अब क्या नहीं अप्लाई पाइथागोरस से, देखिए 90 एंगल है बेटा. Yes, sir. Yes, sir. बेटा AC का हाउ मच शुड बी AC कितना आएगा बताइए. AC कैन बी रिटन A एज Sir, square under plus root B A square. square plus B square. वेरी गुड. पाइथागोरस बेटा आया, देखिए, ठीक है. Yes, sir. आई होप एवरीबॉडी नोस पाइथागोरस थ्योरम हियर. सबको पता है बेटा Yes, पाइथागोरस sir. थ्योरम. Yes, sir. Yes. Yes Yes, sir. sir. नाउ जॉइन BD हियर. BD जॉइन करिए बेटा. Sir, under root A square plus B जॉइन square. BD हियर. कितना का बेटा बताइए अगेन. BD जॉइन करूं तो ये सभी सारा अगेन आ जाएगा. Under root A square plus B square. क्या क्या प्रूफ किया, यहाँ पे क्या प्रूफ बताइए. सॉरी इक्वल, Sir, AC is equals to BD. AC is equals to BD. So diagonals equal. Yes, very good. Now we should also write one more thing here, that diagonal bisect each other. Okay, वो हम proof करेंगे बाद में. Okay, don't worry for that. We prove that here. ठीक है, चलिए. Suppose ये बेटा end point है, ठीक है. There's one more property here, that diagonals are equal. ठीक है, हमने सबसे बेटा इक्वल क्यों कर दिया बताइए. I have written one thing here. I have marked MA equal to MC equal to MB equal to MD. हमने ऐसा क्यों किया बताइए. Sir, because ये bisect कर रहे हैं एक दूसरे को. Yes, a very good point here is Bisectors are equal. They bisect each other. बेटा ACBD इक्वल है, उनके हाफ तो इक्वल होंगे. देखिए ACBD इक्वल है, ठीक है. ACBD आर इक्वल है, उनका हाफ कर दीजिए. बोथ साइड का हाफ कर दीजिए. दोनों साइड का हाफ कर दीजिए आप. बट AC/2 कितना हुआ देखिए. AC/2 इज MA इक्वल टू MC. ओके, दोनों एक बेटा इक्वल ना. देखिए ये देखिए दोनों हाफ. बेटा डायगोनल तो हाफ करते हैं. Yes, sir. इक्वल होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AC/2? AC/2 का मतलब हुआ MA इक्वल टू MC. BD/2 का मतलब क्या हुआ देखिए. BD/2 का मतलब MD इक्वल टू MD. ठीक है, so this is there. BD MD हो गए. देखिए this is a very important property here. What happens in a what happens in a rectangle? In a rectangle, all the diagonal sections are equal. Okay, this property is very important here. property बहुत important है. ठीक है, you have learned this in Okay, class sir. 8 also. आपने class 8 में किया, you have learned this Yes, some sir. questions based on this. आपने कुछ क्वेश्चन किए होंगे इसके ऊपर. ठीक है, Yes. but this property is very important here. MA equal to MB, MC, MD all are equal. ठीक है, चलिए ये भी हो गया. बाइसेक्ट भी कर दिया, और तो कुछ नहीं होता है. चलिए बेटा बाइसेक्ट भी कर दिया. ठीक है, बाइसेक्ट भी देखिए हो गया. Excuse me, sir. बाइसेक्ट मतलब हाँ बेटा बोलिए. Sir, diagonals intersect each other at 90 degree. तो बेटा Sir, that I want to ask, that they bisect or not at 90 degree. हाउ कैन यू से दैट, कैसे बोल सकते हो आप ये. कैन यू प्रूव Sir, दिस हियर. प्रूफ
Sir, is it possible or not that they? आप देखिए आपके सामने बेटा फिगर बना, आप बताइए, चलिए आपसे पूछना, आप बताइए यहाँ पे, तो देखिए आप कौन सी गए, चलिए ओके लेट अस डू दैट। इट इज पॉसिबल। अब बेटा हमें लेट मी चेक कर दे, जो आपके सामने लेके चेक करते हैं अभी, यू कैन आल्सो आंसर इट देन। ये देखिए बेटा ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे बताइए? Sir, Sir, opposite. they will be congruent. सब वर्टिकल और ये दोनों भी कैसे होंगे देखिए? यस कॉन्ग्रुएंट। सर एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, चलिए, तो यू कैन से दैट, देखिए बेटा हाउ कैन यू से दैट 90 होगा? ये 90 तो कैसे कह सकते हो आप? सर बिकॉज अगर ए बाइसेक्ट हो रहा है तो जो 90 का एंगल होगा वो भी बाइसेक्ट होगा। तो अगर हम 4 ट्रायंगल्स, ये बाइसेक्ट Yes, क्यों होगा? ये कैसे बाइसेक्ट हो जाएगा? ये स्क्वायर में होता है बेटा, रोम्बस रेक्टेंगल में नहीं होते। यस सर। स्क्वायर होता है बेटा, स्क्वायर सर Sir, I आइसोस्केलेस have joined with another IC, please accept me. यहाँ बेटा 90 नहीं होगा ये। हाँ बेटा बोलिए उसका। Sir, I have joined with you another ID, so please accept me. लेकिन सर बेटा just wait for this, your voice is not coming clear, just wait सर for it। बेटा बोलिए क्या कह रहे हो आप उसका? डीएम तो इक्वल है ना? सर डीएम एंड एएम तो इक्वल है ना? तो सर ओके जस्ट वेट फॉर अ एंगल मिनट। एडीएम DM और EM, अब बेटा ये तो इक्वल है, वेरी गुड, एंगल इक्वल है, फिर क्या कह रहे हो बताइए? डीएम भी इक्वल होने चाहिए। ओके चलिए, यू आर सेइंग दैट दिस वन इज आर इक्वल है, चलिए इसको ए कर दीजिए, तो चलिए। सब अब बताइए। एंगल वो सर आइसोस्केलेस प्रॉपर्टीज है। हाँ बेटा, तो लेकिन ये कहाँ पता है कि ये आपका ये ए हो गया, सब उसको पी कर देते हैं। ये कहाँ पता कि इक्वल है तो आपको? सर फिर ए प्लस और सर हम इसको y मान लें, a प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ हाँ, अब बेटा आगे बोलिए। बेटा उससे ये काम रुकोगे, दोनों इक्वल है ये, उसके लिए इनको कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा। दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट है, देखिए देखिए आपको बता रहे क्या कह रहे हैं, देखिए देखिए बेटा, आई अंडरस्टूड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से हियर। देखिए यू आर सेइंग दैट, ओके लेट मी गिव माय लॉजिक हियर। हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं, देखिए सर वो बी होगा ना? यस बी हो। देखिए बेटा, तो ये बेटा कॉन्ग्रुएंट है, देखिए ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना आपस में, एडीसी और एबीसी, बताइए। Yes, Yes, sir. sir. ये बेटा कॉन्ग्रुएंट है ट्रिपल है, तो देखिए यू कैन सी दैट इज अ ट्रिपल कॉन्ग्रुएंसी बी बी ए ए, SSS. so there is a triple कॉन्ग्रुएंसी here, ओके? यस सर। ठीक है बेटा, चलिए बट अब जब आप सीपीसीटी करोगे, देखिए सीपीसीटी करिए, जस्ट अप्लाई सीपीसीटी से हियर, ओके? तो ये कौन इक्वल होगा बेटा? ठीक है, बी के ऊपर बेटा ये है, ये अगर x है तो ये x होगा बेटा। Alternate interior angle. ये वो भी तरीका है, देखिए दैट इज आल्सो गुड वे। The parallel line starts with. p है तो ये भी बेटा p होगा, ओके? मैं आल्सो से दैट AB DC के बेटा Yes, पैरेलल है, sir. ठीक है? उससे भी आप कर सकते हो, कांग्रेस से कर दीजिए, और इजी हो गया आपके लिए। अब देखिए बेटा, ये देखिए ये भी क्यू है, ठीक है? हाउ कैन से दैट दोनों इक्वल है, ये बताइए। ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, Yes, sir. पता है इसको कौन सा पैरेलल है।
वी कांट से दैट, ओके, डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बेटा स्क्वायर में अब जो आप बोल रहे हो स्क्वायर में वो करेक्ट है। चलिए आगे आते हैं। ओके सर। Whatever you are taking here, वो Sir, square means में X and Y are not 90 degree ना? Yeah, 90 भी नहीं, बेटा 90 नहीं है ये, yes, 90 is not there, yes, 90 is not there। चलिए तो देखिए समरी क्या है यहाँ पे, समरी है इन अ रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, बस इंटरसेक्ट बाइसेक्ट ईच अदर, एट नहीं, एट कुछ नहीं, कोई फिक्स एंगल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके सर। अब देखिए हम लोग स्क्वायर करेंगे तो देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। स्क्वायर में देखिए क्या बेटर होता है। Before going to the quadrilateral chapter in proving things, you should be aware about the basic nature of quadrilateral, okay? Because sometimes what happens, questions comes on the basic things. कि rectangle में कुछ वो changes कर देगा, then you can't do that, otherwise आप नहीं कर पाओगे उसको, okay? आपको करने के लिए बेसिक आना चाहिए सारा, किस तरह की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, that is important here। चलिए Excuse me, sir. बेटा बोलिए। Sir, all quadrilaterals are made from parallelogram ना? No. बेटा क्वाड्रिलेटरल का सबसेट है पैरेललोग्राम, तो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सारे पैरेललोग्राम आ जाएंगे, तो पैरेललोग्राम इज स्पेशल केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ओके। ओके सर। आप कह रहे हो कि सारे, अगर आप बोलो सारे पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है, हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल तो बेटा रोमस भी होता है, रोमस पैरेललोग्राम नहीं होता है, फिर जो हो जाएगा ना, वी कैन से दैट ऑल द पैरेललोग्राम्स आर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। Yes, sir. But all the quadrilaterals are not parallelogram. Opposite is not true, ठीक है। चलिए Yes, sir. now we have square। देखिए स्क्वायर में क्या होता है, we have learned about parallelogram, we have learned about rectangle, sorry, we have learned about rhombus, we have learned about rectangle, now we are learning about square, okay। देखिए स्क्वायर में क्या होता है, let us see स्क्वायर में देखिए क्या होता है। तो स्क्वायर is very basic figure, All four sides are equal and 90 degree. yes। देखिए बहुत क्लोज रिलेशन है बेटा यहाँ पे, देखिए व्हाट इज द क्लोज रिलेशन हियर, Sir, you can write that, yes। सर यानी सर पैरेललोग्राम में अगर सर सारे एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो स्क्वायर हो जाएगा? नहीं बेटा रोम्बस में हो सकता है, रोम्बस में अभी नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं, आप रुक जाइए, लिख रहे हैं रेक्टेंगल in which I'm just writing definition here, then we will discuss that क्या क्या और हो सकता है, okay। a rectangle in which adjacent sides are equal, okay। बेटा जैसे आप पैरेललोग्राम से रोम्बस पे आए थे वैसे आपको रेक्टेंगल स्क्वायर पे आना, ठीक है, वो सेम जंप है यहाँ भी, जो प्रॉपर्टी आपने पैरेललोग्राम से रोम्बस में करी थी वही प्रॉपर्टी आपको रेक्टेंगल से स्क्वायर में करनी, ठीक है। देखिए now you understand, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लिया आपने सब, ठीक है। जिस प्रॉपर्टी से आप पैरेललोग्राम से रोम्बस पे आए थे ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल से स्क्वायर में आती, ठीक है। तो देखिए क्या किया हमने, देखिए यहाँ पे नई चीज क्या करी आपके लिए, बस रेक्टेंगल इन विच एज इक्वल, ठीक है, तो क्या देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, देखिए अब इसका दो क्लब कर देंगे, देखिए रेक्टेंगल क्या कहता है, रेक्टेंगल से ये इक्वल है एंड ये इक्वल है, ठीक है। रेक्टेंगल क्या कहते, देखिए आई एम सेइंग आल्सो इक्वल, मैंने पहले कहता सेम चीज सेम करा, देखिए इसको इक्वल कर दिया रिएक्शन साइड्स को, तो गिवन कंडीशन सेज AB is equal to BC and AB is equal to AD, ठीक है बेटा। देखिए ये प्रॉपर्टी किसकी है बेटा, ये Rectangle. ये रेक्टेंगल से है और ये क्या चीज है, ये बेटा कंडीशन है, ये एडिशनल कंडीशन आपने इंपोज करी है, ठीक है, ये आपका एडिशनल कंडीशन आपने इंपोज करी है, ठीक है, एडिशनल कंडीशन इंपोज, ठीक है बेटा।
ये रेक्टेंगल प्रॉपर्टी देखिए आप क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगल जो था आपने उसमें इक्वल कर दिया, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल प्रॉपर्टी है, आपने इसे ये भी ला के क्लैप कर दिया। देखिए इसके दोनों से मिक्सचर से क्या बना है, देखिए दोनों मिक्स करिए, देखिए। So you can write here that from here you can Also write sides that are equal to each other. AB is equal to BC is equal to AD, but AB is also equal to BC। देखिए ठीक है ना बेटा, हमने इनको समराइज कर दिया। देखिए AB is equal to BC is equal to AD, okay। Now put one more thing here, देखिए AB DC, बेटा DC के भी इक्वल AB, देखिए DC भी कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, what we have found from here, Square. AB Square. AD और इक्वल, सारे इक्वल हो गए। देखिए ये बेटा सारे देखिए इक्वल बन गए यहाँ से, क्लियर। ये स्क्वायर Yes, होता sir. है, स्क्वायर बन के आ गया। चलिए अब आप लोगों से पूछेंगे, आपको बहुत हमने क्लियरली बताई ये चीज, देन आई विल सी कितने लोगों को याद है। बेटा ये बताइए व्हाट इज डायगोनल, डायगोनल कैसे होगा बताइए, डायगोनल बेटा कैसे होंगे Diagonals will be बताइए। equal in length. Diagonals are equal. वेरी गुड, बेटा इक्वल होंगे इसके, व्हाई, Yes, sir. बिकॉज़ Sir, because sides are equal in all Because sides all are sides are equal. equal. 90 degree also. आपने देखा था, आपने एक्चुअल देखा था, फॉर्मूला वाज दिस, ओके। यू हैव Yes, सीन sir. दैट इन रेक्टेंगुलर फॉर्मूला वाज दिस। यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, यहाँ बेटा Sir, A और but दोनों here सेम D है, is A only. both are same here, just change it to A, okay, both are A here, इसे दोनों A हो गए, देखिए ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए इसका मीनिंग क्या Sir, हुआ diagonals बेटा, are equal in length. AC is parallel to BD. ठीक है, इसी दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, पैरेलल नहीं बेटा, इक्वल, ओके। AC Okay, is sir. parallel to BD. Yes, तो sir. ये स्क्वायर AC is equal to BD, ओके। ये भी देखिए हो गया, चलिए यू कैन जॉइन देम। M हो गया, तो वी कैन आल्सो वन इंपोज वन मोर कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या होगी बेटा, दैट Sir, MA make A bisect बेटा, each equals, other. MA is equals to MC. यस, FD is equals to MD. MB equals to MD. बेटा सारे इक्वल होंगे, ऑल आर Yes, इक्वल sir. टू ईच अदर, ठीक है, Yes, बिकॉज़ sir. तो इक्वल है, इसके सेक्शंस भी इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए तो हेंस MA is equal to MB is equal to MC to MD, ठीक है बेटा, देखिए MD. Yes, sir. सारे इक्वल हो गए, देखिए सेक्शंस भी। नाउ अब ये बताइए, ये तो एंगल कितना होगा, एंगल ये वाला, 90 90 degree. व्हिच इज दिस एंगल है 90 90 degree. डिग्री, 90 degree. ये All तो are रेक्टेंगल से आ 90 गया, दिस प्रॉपर्टी हैज कम फ्रॉम रेक्टेंगल, ओके, रेक्टेंगल से आ गया। ये बताइए बेटा व्हाट कैन यू से अबाउट दिस एंगल, Sir, it's Sir, also 90. 90. 90 degree. कैसे होगा, कैसे प्रूव करें बताइए, Sir, because हाउ टू प्रूव दैट दिस, Sir, all four triangles are Sir, congruent. because sir, all four sides diagonals are equal. ओह दैट इज लेंथ, बेटा वो लेंथी मेथड है, और कुछ सोचिए, और कुछ सोचिए, लेंथी मेथड, वो लेंथी मेथड है, सोचिए बेटा, Sir, so all triangles are congruent. वो तो छोटा वो है, बट चलिए उससे कर दो, वेरी गुड, उससे कर लीजिए, मेथड है वो, चलिए उससे कर लीजिए, वेरी गुड। देखिए बेटा, तो यू कैन से दैट बेटा दोनों ये कॉर्डिनेट है, देखिए दोनों ट्रायंगल, ये देखिए चारों को मत करिए, Yes, sir. दो से हो जाएगा आपका। यू कैन से दैट AMD and AMD are coordinate, okay, can you say that, you say that AMD and AMD are coordinate because they are, देखिए ट्रिपल एस और ट्रिपल एस है, देखिए यहाँ पे ट्रिपल एस है, ओके, SSS. Yes, Yes. sir. देखिए यहाँ पे ये इसके Yes, sir. इक्वल, ये इसके इक्वल कॉमन, ठीक है, ये ट्रायंगल Yes, कैसे हो गया sir. बेटा, ओवरलैपिंग हो गए, ठीक है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. How much is- ये पूरा एंगल पूरा एंगल कितना है बताइए, Sir, 180 180 degree. 180 degree. 180 degree. देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये Sir, 90 90. degree. Sir, 90 degree. कितना हो गया 90, ये भी कितना हो गया 90, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इन ए स्क्वायर हम diagonals bisect each other at 90 degree, 90 okay? degree. 90 degree. रेक्टेंगल में ऐसा नहीं था, ओके, रेक्टेंगल में ऐसा नहीं था बेटा, बट डायगोनल उसमें क्या होता है आपके स्क्वायर में, इन ए स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ओके।
ये याद रखिए 90 बेटा degree. कॉमन चीज है, Yes, sir. ठीक है. So I will write it here finally. Yes, sir. You can write that diagonals bisect each other, okay, perpendicularly, okay. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, ये देखिए, ठीक है बेटा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, ठीक है, समझ में आ गया आपको? Yes, आगे sir. बढ़ते हैं. Yes. ओके, स्क्वायर भी देखिए हो गया. तो देखिए स्क्वायर और रोम्बस में बताइए, स्क्वायर और रेक्टेंगल डिफरेंस कहाँ पे आ गया फिर? Sir, square बताइए बेटा, and rhombus. स्क्वायर और रोम्बस में स्क्वायर और रेक्टेंगल डिफरेंस कहाँ पे? रेक्टेंगल में सर उसके अपोजिट सारी साइड साइड्स इक्वल्स इक्वल होती नहीं है. होती. पहला डिफरेंस तो वही है, और कोई डिफरेंस बताइए स्क्वायर और रेक्टेंगल. Sir, diagonals don't सर bisect डायगोनल at 90 बाइसेक्ट नहीं degree. करते 90 डिग्री पे. बेटा ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, देखिए स्क्वायर ये रेक्टेंगल फॉलो नहीं होती है प्रॉपर्टी, ठीक है. प्रॉपर्टी Yes, sir. डायगोनल बाइसेक्ट ये इसमें नहीं होता है, देखिए रेक्टेंगल में, ठीक है. फिर ये बताइए बेटा, स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है? फिर स्क्वायर रोम्बस में डिफरेंस कहाँ पे आएगा? स्क्वायर रोम्बस में सर ये ऑल angles 90 एंगल्स आर degree नहीं 90 होते. डिग्री इन स्क्वायर बट इन 90 नहीं होते रोम्बस. हैं, 90 नहीं है. और बताइए. और सर वो उनकी डायगोनल्स इक्वल भी नहीं सर होते. डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. बेसिक डिफरेंस इज दिस ओनली, स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल है और रोम्बस से इक्वल नहीं होता, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये कॉमन डिफरेंस याद रखिएगा. तो इन स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल बट इन रोम्बस डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ओके. ये बहुत कॉमन डिफरेंस है बेटा. तो साइड से बड़ा इक्वल होती है रोम्बस और स्क्वायर में, ठीक है. और Yes, डिफरेंस sir. कोई ऐसा है नहीं उसमें, बाकी सब सेम रहता है. एंगल 90 है, वो भी डिफरेंस है, बाकी सब सेम है. देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट अस मूव फर्दर नाउ. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, so now we have trapezium, okay. स्क्वायर हो गया बेटा. नाउ विल गो टू ट्रेपेजियम. ये ट्रेपेजियम क्या होता है? Sir, your ट्रेपेजियम screen is. ओके बेटा, इट इज क्लियर हियर. यहाँ तो क्लियर है. Sir, now it's okay. यस सर क्लियर है. Sometimes your network is also creating problems. Sometimes because we can't say कितना problem है, but as far as I see in my laptop, everything is clear here. Be patient. थोड़ा कभी भी थोड़ा दिक्कत होती है तो just be patient for some time. If the problem persists for more than 1 minute, then it is a critical one. तो बेटा ऐसा होता है because इतना सब लोग बेटा ऑनलाइन काम करते हैं. बेसिक रीजन है सब कुछ ऑनलाइन हो गया. कितना बढ़ रहे हैं समझिए ऑनलाइन ऑपरेटर्स से, चाहे वो जियो हो, चाहे आइडिया हो, चाहे आपका एयरटेल हो, सब पे बहुत बढ़िया चल रहा है इस समय. सब लोग ऑनलाइन आ गए हैं. सारे स्कूल ऑनलाइन है, सारे टीचर्स ऑनलाइन है, और लोग घर से निकल नहीं रहे हैं तो सारा काम ऑनलाइन, शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे हैं लोग, सब्जी ऑनलाइन मंगा रहे हैं, सब ऑनलाइन ही चल रहा है. बिलिंग ऑनलाइन हो रही है मोबाइल की या इलेक्ट्रिसिटी की. इतना बर्डन आ गया है कि समटाइम्स इट बिकम प्रॉब्लम, ठीक है. हो सकता है कभी कोई प्रॉब्लम Yes, आ जाए. वी हैव टू बी पेशेंट फॉर सम टाइम. चलिए देखिए यहाँ पे बेटा क्या होता है, देखिए ट्रेपेजियम में क्या होता है. Sir, AB parallel. AB parallel to DC. But how to write? इसे कैसे लिखे इसको बेटा? We can write that One Sir, in one pair triangle of AB. opposite sides are one pair equal. of बोथ नहीं, देखिए पैरेललोग्राम में बोथ होता है, ठीक है. लोग्राम में बोथ होता है, यहाँ पे देखिए वन पेयर होता है, ठीक है. वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज Parallel. Parallel. बेटा. Yes, sir. ये बेटा वन पेयर, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते. ये कांट से इसको पता ही नहीं हमें. बट अगर वन होगा तो क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे बेटा? वन को Trapezium. ट्रेपेजियम, ठीक है. चलिए अब देखिए इसमें एक होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी होता है, ठीक है. तो देयर इज ओनली स्पेशल केस हियर, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. सर उसकी नॉन पैरेलल साइड भी इक्वल हो जाती हैं.
Yes. In isosceles trapezium, trapezium मतलब क्या है? ये trapezium जो है, so what should be followed here? AB equal to DC, तो ये तो होगा ही बेटा, but along with that and DC parallel to CA. AD is equal to BC, ठीक है बेटा, ये भी होता है देखो. This is also equal. जब ऐसा होगा तो बोलेंगे आइसोसेलेस हो गया. ठीक है. But sir, they are not parallel ना? पैरेलल नहीं बेटा, पैरेलल नहीं है. Okay sir. These are equal है. इक्वल नहीं बेटा, इक्वल नहीं, इक्वल है बट पैरेलल नहीं है. ठीक है. देखिए आइसोसेलेस हो गया. चलिए. Now the last figure is kite figure. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now the last figure is kite figure because you should be aware about all the diagrams here. I hope सबने बेटा पढ़ रखा है ये, but sometimes properties वो लोग भूल जाते हैं. तो ज्योमेट्री है, बहुत चीजें होती है. Sometimes you forget the thing. That is why it is necessary to remind you the earlier class 8 things also. तो सबने डायग्राम क्लास 8 में करेंगे, but then also it is necessary क्योंकि इनके बिना आपका ये काम चक्र आगे बढ़ ही नहीं पाएगा. इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आपको बताना चाहिए हमें. चलिए काइट फिगर देखिए क्या होता है. So the last thing is we have done parallelogram, we have done rhombus, square, rectangle, trapezium. One is kite figure. Kite figure क्या होता है? So what happens in a kite figure? ये काइट फिगर है. ये A B C D. ओके बेटा काइट फिगर है. इन दिस फिगर व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ काइट फिगर? AB is equal to AD and Adjacent side are equal. BC equal to DC. adjacent sides are Equal. but AD cannot be equal to AB. AD DC देखिए एडजेसेंट तो ये भी है. ठीक है. तो only two pairs are equal. Okay. One pair is this. Yes, other sir. pair is Opposite this. two pairs are equal ना? देखिए एडजेसेंट तो DC भी AD के, वो इक्वल नहीं है. देखिए you write it here. देखिए ये इक्वल नहीं है, ये भी एडजेसेंट है. and here also AB BC में एडजेसेंट है. देखिए So two pair of adjacent sides are equal. yes. Two pairs of, one pair is this, other pair is this. Two pairs of sides are equal. ठीक है. चलिए ये सब बेटा एडजेसेंट साइड से देखिए. टू पेयर, देखिए दो पेयर, एक पेयर ये, फर्स्ट पेयर ये, सेकंड पेयर ये. ओके. टू पेयर्स आर इक्वल. these are adjacent sides here. ओके. Yes, sir. adjacent sides हो गई है. चलिए now you can see that few more things are here. अरे बेटा और क्या होता है यहाँ पे बताइए. Sir, angle ADM equal to angle ABM. वेरी गुड. हाउ, कैसे होगा वो? Isosceles property sir, isosceles property. चलिए वेरी गुड. somebody has added this. चलिए ये देखिए एक्सेस हो गया ये. ठीक है. और ये देखिए सर वाई वो वाई हो 90 गया. डिग्री भी होता है क्या? हाँ बेटा होता था. तो बेटा प्रूफ करें, क्या प्रूफ करें उसको? And sir, DM is equals to BM. हाउ, कैसे कह रहे हो आप ये? Sir, because triangle AMB and triangle AMD are congruent. कैसे बेटा, कैसे कह सकते हो आप? कितना कॉन्टेंट है बताइए. कौन सी बॉडी फॉलो करा रहे हो आप? Sir, AM is common and AD is equals to AB and angle ADM is equals to Yes. angle ABM. So we can see them congruent. Which criteria is there? कौन सा criteria बताइए? बताइए बेटा, which criteria is this? Sir, It's not SAS. SAS नहीं है बेटा वो. Angle is not in between. देखिए. yes sir. It's not in between. SAS नहीं है. You are wrong. SAS में बेटा angle should be between the sides. Okay. If you say these angles are equal, then you can say that. ये इसके equal, ये common और ये angle हो गया. ठीक है. SAS is not Yes there. sir. Yes sir. But we can say angle DAC equal to angle BAC. Sir, as triangle ACD and triangle Yes. ABC are congruent Now to each other. correct. Yes. Now is correct. We have to pick triangles ADC. Now we are correct. And ABC. Okay.
Yes, sir. Why you can say this? अब आप बोल सकते हो why you can say that because then we can write that SSS से कॉन्ग्रुएंट. AD is equal to AB. Sir, can you repeat it again? Sir, I was Equals disconnected. to BC. See, beta, the basic property that we follow in kite figure. In a kite figure, basic property is two pairs. Okay, two pairs of adjacent sides are equal. Okay, this pair is equal. This is not equal. देखिए, four pairs are here. Okay, देखिए, there are four pairs of adjacent sides. Sir, Okay, there are Sir? four pairs of adjacent sides. Only two are equal. Okay, अब बेटा बताइए. no Sir, sir, मैं angle- confused हो गया था. No sir. सर एंगल AMD 90 डिग्री होगा क्या? सर आपने Very good. ट्रायंगल You want ADC to- Yes, sir. सर आपने सर ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC सर SSC कॉन्ग्रुएंट करी है. SSS very good. SSS very good. ये इसके equal, ये इधर और ये common. ठीक है बेटा? So here we have SSS. And sir, we can also ठीक say है? na angle ADC is equal to angle ABC. ADC yes. वो तो बेटा है x plus y देखिए वो तो है equal. वो एंड भी कर सकते हैं very good वो भी कर सकते हैं. सर ट्रायंगल Yes, yes, ADM इज इक्वल टू yes, yes, very ABM. good. देखिए बेटा Yes, दोनों sir, equal angle भी है. A We equal can to apply angle C. SAS. So there are both here. SAS भी हो सकता है. ठीक है? There is SAS congruency also here. सर ट्रायंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ABM. उस पे आ रहे हैं, उस पे कर रहे हैं. और फर्स्ट सी दिस ये देख लीजिए आप. तो नाउ वी कैन अप्लाई सिंपलिसिटी हियर. ओके, नाउ वी कैन अप्लाई सिंपलिसिटी से हियर. सिंपलिसिटी से क्या बोलेंगे बताइए? Angle Overlapping होंगे देखिए. DAC is equals to angle BAC. वी कैन राइट दैट आपने सर SAS से क्या कॉन्ग्रुएंट करा है? बेटा ADC और ABC दोनों में SAS भी है, SAS भी है और देखिए एंगल देखिए ये वाला. देखिए बेटा ये एंगल यहाँ भी है ना. देखिए दोनों में है. Yes, sir. ABC बेटा ABC इक्वल देखिए. Yes, तो sir. SAS भी हो रहा है, SSS भी हो रहा है. ठीक है, चलिए. यस सर. So by simplicity we can write that this angle W is equal to this angle W. देखिए ये इसके अपोजिट है, इसके अपोजिट ये. ठीक है, BSc. देखिए बेटा. Yes, sir. देखिए अब यहाँ पे 2 के साथ S here, ये देखिए S है. ठीक है, Yes, sir. और यहाँ बेटा Yes, बताइए. sir. Now pick two triangles here. Sir, अब यहाँ पे दो bisectors triangle और हो pick गए कर ना? लीजिए. AMD, AMB. Triangle AMD and triangle AMD. Okay. Yes, sir. यहाँ बेटा यहाँ बताइए कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है? सर एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. देखिए Sir, ASA. कॉमन. ठीक है, देखिए बेटा x w एंड कॉमन. ठीक है, Yes, साइड sir. इज इक्वल. AD equal to AB. वी हैव Okay, a sir. ऐसे कॉन्ग्रुएंसी. Congruency. When the triangles are congruent here, so we can apply the overlapping. Okay, can we say that? Yes, sir. एंगल AMD इज इक्वल टू Write AMD. it here that suppose ये बेटा आपका एंगल M है, ये भी M होगा. ठीक है, Yes, sir. Linear तो pair. देखिए दोनों M होंगे, बट ये Yes, sir. नॉट DB से स्ट्रेट लाइन. देखिए Sir, 90 डिग्री हो जाएंगे दोनों 90 एंगल. डिग्री हो जाएगा. ये वही बेटा प्रॉपर्टी है. Because DB is a straight line, hence M plus M should be 180 degree. So M should be 90 डिग्री. ठीक है बेटा. Yes, 90 sir. हो जाएगा देखिए. So now we can summarize it. अच्छा, what can you say about DM and MB बताइए? Sir, they are equal by CB, CTC. They are also equal. CBCD देखिए भी equal है. Along with that, we can also write that by CBCD. By DM CBC equal to BM. also write that DM is equal to MB. ठीक है. चलिए ये भी हो गया. देखिए अब देखिए हम आपको इसका क्यों बता रहे हैं? बिकॉज देयर आर 6 फिगर्स. 6 फिगर है देखिए यहाँ पे. 6 फिगर्स आर देयर. you sometimes you get confused also. अब कंफ्यूज हो जाओगे कभी, ये इक्वल है कि ये इक्वल है. दैट्स व्हाई यू शुड नो द बेसिक आल्सो. ठीक है, द बेसिक शुड बी नोन टू यू. अब वो बेसिक नहीं पता होगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि इक्वल था, कंफ्यूजन हो गया, छोड़ दिया क्वेश्चन और आगे बढ़ गए. ओके, सो दैट्स द बेसिक इज आल्सो नोन टू यू.
ठीक है, अगर आपको बेसिक पता रहेगा देन यू कैन प्रूव इट आल्सो, प्रूव कर दो क्या तुरंत, अच्छा ये कॉर्नर हो गया है, ये किसमें आ गया ट्रायंगल में, देन देयर आल्सो कॉर्नर हियर, ये ओवरलैपिंग हो गया है, एंड देन सेम हो गया 90 180 है 90 हो गया, एंड सीपी इज डीएम एमबी, ठीक है बेटा, दीस थिंग्स आर देयर। एक्सक्यूज मी सर, हां बेटा बोलिए। सर एंगल x will be equal to angle y ना? ये बेटा एक्स क्यों इक्वल होगा? सर because X triangle नहीं होगा। ADB is equal to triangle DCB. ADB बेटा इक्वल नहीं है, देखिए साइड ये अलग साइड है, सपोज दिस इज AB है ये, so this side is A here, this is A here, ये A है, ये बेटा ये B है, देखिए ये बेटा देखिए A और B हो गया, देखिए Okay sir. these are not ADB and BDB से ना कॉन्ग्रेट, ठीक है, कॉन्ग्रेट नहीं है ये डायग्राम है। चलिए तो बेसिक रिजल्ट देखिए क्या है, the basic result is in a kite figure diagonals intersect at 90 degree. 90 degree and They bisect each other. DM is equal to MB, okay बेटा, bisect नहीं बेटा, bisect each other नहीं कर रहा, Yes, sir, देखिए bisect बेटा AM MB की को नहीं, देखिए just you have used the word here, बेटा AM MB की को नहीं, देखिए ओके, ये बेटा देखिए Yes sir. AM MB की इक्वल नहीं, देखिए AM is not equal to MB but DM is equal to MB, ठीक है। Yes sir. तो मैं देखिए इसलिए कह रहा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, sometimes we get confused because so many figures are there, ठीक है, just remember just draw a diagram first, then patiently write the values, okay, so DM should be equal to MB but AM is not equal to MB and angle 90, ठीक है बेटा। सर तो मैं ADC एंड आगे ABC बढ़ 90 जाते हैं। डिग्री होता है। ADC no but 90 भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, no it is not correct, it is not there, 90 होगा ये, we are not given that, नहीं पता है ऐसा कुछ। सर एडी Not से ठीक है, इक्वल होगा क्या? AD बेटा BC के इक्वल होगा, नहीं सर, नहीं ऐसा भी नहीं है, पैरेलल। पैरेलल होगा, पैरेलल कैसे कर सकते हैं बेटा बताइए, हम लोग से जैसा पैरेलल है ये बेटा पैरेलल कब होती है, देखिए लेट मी चेक दैट, ये पैरेलल चेक कर लेते हैं। No sir, they are not parallel because x is not equal to y. Alternative interior angles. चेक कर लेते कोई बात नहीं, चेक ऑल्सो because we can't learn all the things, सारी कुछ जगह की you should be clear about the basic figure and the knowledge of the convention, okay, these two things should be clear to you। देखिए so I will draw the AD and BC, ठीक है, AD से ड्रॉ कर रहे हैं, you are saying ये पैरेलल है, so when they are parallel, देखिए पैरेलल को कब होता है, when these angles are sum of these angles 180 degree, okay, ठीक है बेटा, मतलब sum of these angles 180 degree, अभी तो बेटा पैरेलल होगा, Yes बताइए, sir. but these are not parallel, the sum 180 है कहीं, say that इनका sum 180 है ये, बताइए बेटा, you say that sum of what I am trying to say here, that can we say that x plus y plus s plus s is 180 degree, okay, can you say that, बताइए, No sir. exactly say that, वो 90 है, देखिए तो 90 हो गया, चलिए इसको 90 कर लीजिए आप। One thing we are sure of that y plus s is 90, okay, Yes 90 sir. होगा something Yes, sir. इनका। One thing is sure है, and x plus w भी 90 होगा, देखिए ये भी देखिए 90 है, यस सर। okay, how can you say that ये भी 90 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, बताइए, how can we say that, नहीं कर सकते बेटा ऐसे, यस सर, can't नहीं हो comment on सकता। that, ठीक है, डायरेक्टली नहीं बोल सकते, चलिए, and one more thing is there that देखिए बेटा पैरेलल के लिए एंगल शुड बी इक्वल, देखिए सपोज I write in this manner, ओके, देखिए एक तरीका और है चेक करने का, ये तो बेटा ये तो आपका कोइंटिनियस हो गया, ओके, वी कैन हैव यस सर। ऑल्टरनेट भी हो सकता है, देखिए ऑल्टरनेट चेक कर लेते हैं, देखिए उसके लिए Yes sir. ट्रांसफर X is not equal to y.
नो नो एक्स नहीं, डब्ल्यू और एस, डब्ल्यू एस की बात करिए। देखिए we have one more property here, देखिए we can talk about this angle also. Can you say that कि WS के बेटा इक्वल है? देखिए No, sir. say this. How can we parallel? ये parallel कैसे होगा बताइए बेटा? अगर ये देखिए बेटा, ये यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहे हैं? ये these two are behaving as Alternative interior angles. इंटीरियर। इक्वल तो बेटा है नहीं, ये तो नहीं इक्वल तो क्या बोल, इनको पैरेलल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ऐसे तो, ठीक है? नो सर नहीं। That is there. ठीक, कौन जाए बेटा? चलिए यस सर। we will do here, यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। तो I will suggest you just revise this whole lecture, okay? इसको रिवाइज करिएगा प्रॉपर्ली। सर प्लीज आज की रिकॉर्डिंग भेज देना। ओके ओके, वेरी गुड, भेज देंगे बेटा। चलिए ठीक है बेटा। Sir, any homework? आपको सजेस्ट हम ये कर रहे हैं होमवर्क बेटा। चलिए एक होमवर्क कर लेते हैं। चलिए let us take one question for your homework. की वॉइस नहीं आ रही। बेटा आप बोल नहीं रहे हैं। ओके चलिए होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा। इसमें देखिए आपका कोऑर्डिनेटर भी है और इन दिस क्वेश्चन कोऑर्डिनेटर इज देयर एंड इनइक्वालिटी इज आल्सो देयर। ठीक है, इनइक्वालिटी भी है, कोऑर्डिनेटर भी है। ठीक है, दोनों करिएगा। चलिए इनइक्वालिटी भी है और कोऑर्डिनेटर भी है। ठीक है बेटा। Now we'll have a home assignment question for you. बेटा सब लोग सेंड करिए, only people are sending the solution. सबको बेटा सेंड करना है solution, okay? The question is to everyone. Only few people are taking interest in solving and sending me, okay? As far as I remember, only 4 people have sent me the solution of the last question of the last turn. देखिए let us say now we will combine the quadrilateral and inequalities. Okay, देखिए क्या combine कर रहे हैं यहाँ पे। The question is if O is any point inside a quadrilateral, if O is any point inside a quadrilateral ABCD, then show that OA plus OB plus OC plus OD is greater than AC plus BD. Okay, this we have to show. ठीक है बेटा। चलिए this is your home assignment question. देखिए बेटा इसमें quadrilateral भी है, okay, quadrilateral is also there and equality is also there. ठीक है, तो कमेंट दोनों कमेंट करिएगा, then you can do this. चलिए करिएगा इसको। this is your home assignment question. Okay, Thank you, sir. ठीक है बेटा। चलिए thank you very much. थैंक यू सर। Thank you, sir. बेटा प्रैक्टिस करिएगा and send me